Raghav Chadda ji to please kindly not mislead the house. मैंने जब उनके सवालों पर जवाब देने के लिए अनुमति मांगी तो मुझे इजाजत नहीं दी गई। पहली चीज सर, ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही ना, जैसे कि इस देश में एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो कमाई होती है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, ये वो नहीं है। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। टैक्स डिडक्शन होता है कि फर्ज करिए आपने साल में 15 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स डिडक्शन आपको 12 लाख रुपए की मिली, तो 12 घटा 15 घटा 12 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज्यादा, फर्ज करिए आपने 12 लाख 1,000 रुपए कमाया तो पूरे 12 लाख 1,000 पे आपके स्लैब अनुसार आपसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। और दूसरी चीज कैपिटल गेन्स पे, यानी कि अगर आप अपने कोई मकान बेचते हैं, सोना बेचते हैं, इक्विटीज बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, उस पर जो कैपिटल गेन पे मुनाफे पे लगता है टैक्स, वो इस 12 लाख की सीमा में नहीं आएगा, उस पर आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। Honorable member Raghav Chadda is seated here. I got to know he's a chartered accountant. Sorry, I didn't know earlier. I must confess. But he said, probably I've forgotten. Pardon for that. ये जॉन बिटाजिक हर वक्त में Because repeatedly I don't see the strength of a chartered accountant coming in your in your interventions. So it makes me question, am I really right in thinking you're a chartered accountant? I honestly want to request humbly Honorable Member Raghav Chadda ji to please kindly not mislead the House. I don't mean he intended it to do. I don't think he intended to mislead the House. But the way he put the whole detail about the personal income tax, which has come in this budget, sir, 25-26, we issued FAQ. Just as soon as I finished my speech, the FAQ was put out. Lots of people who asked the questions have all been comprehensively given explanation. For an honorable member to come to the House and say, no, you will pay entirely every rupee post your 12 lakh salary. No, the marginal relief takes it further down. You don't need to pay till about 12 lakh 75,000 what you don't end up paying. And after that, 0.75. Yes? Please. 12 points. So for this understanding, Raghav Chadda, honorable member, kindly indulge me. I will give you number by number. Listen to me. Sir, 12 lakh 10,000. If suppose the person earns more than 12 lakh, that was his core worry. I'm saying, if he earns more than 12 lakhs, suppose he earns 12 lakh 10,000, the tax without marginal relief would have been 61,500. Whereas with tax marginal relief given, which is given in the budget, he pays only 10,000 rupees. All right, sir. So yes, 12 lakh 50,000. What if he earns that much? The tax without marginal relief. Listen, please. Listen, please. Mr. Raghav Chadda, you missed. Please take your seat. I am not allowed to. Please take your seat. Sir, if a person earns 12 lakh 50,000, tax without marginal relief for him would have been 67,500 rupees. 67,500. But with marginal relief offered, he will pay only 50,000. Suppose he's earning 12 lakh 70,000 rupees. Without marginal relief, he'll pay 70,500. Whereas with marginal relief, he pays 70,000. And it is only when he reaches 12 lakh 75,000, his tax will be 71,250 with or without marginal relief. All right, that is it. What do you expect me to want to 20,000? So, Raghav Chadda being a chartered accountant, I repeat, is only misleading all important people. And this is put out openly. There's no hide and seek in this. This is put out, the calculation are put out openly. And a chartered accountant keeps repeatedly saying, that's exactly what I'm asking. I'm saying that in written and in oral. What more does he want? I've not hidden anything. कल राज्यसभा में बजट पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मेरे बयान को लेकर काफी कटाक्ष किया और ये भी कहा कि मैंने हाउस को मिसलीड करने की कोशिश करी। मैंने जब उनके सवालों पर जवाब देने के लिए अनुमति मांगी तो मुझे इजाजत नहीं दी गई। इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से सीधा वित्त मंत्री जी से बात करूं और दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करूं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जो बात कही थी मैं आज भी उस पर पूरी तरीके से कायम हूं। ये 12 लाख रुपए की जो टैक्स रियायत दी जा रही है सरकार द्वारा, ये ना ही टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही टैक्स डिडक्शन है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिबेट। यानी कि 12 लाख रुपए से ऊपर अगर आप आमदनी कमाते हैं एक वित्तीय वर्ष में, तो आपको अपनी पूरी आमदनी पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिए गए उदाहरण को वित्त मंत्री जी ने टेक्निकली उसे उलझाने का प्रयास किया, उसमें मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट जोड़कर यह सिद्ध करने की कोशिश करी कि मेरा उदाहरण गलत था। मैं आपसे वित्त मंत्री जी सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख से ऊपर इनकम कमाएगा तो उसको अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा? चलिए, मार्जिनल टैक्स रिलीफ 1275 तक आप दे रहे हैं, आप मुझे यह बताइए कि अगर एक व्यक्ति 13 लाख रुपए 13 लाख रुपीज एक वित्तीय वर्ष में कमाता है तो उसे अपने पूरे 13 लाख की आमदनी पर अपने स्लैब अनुसार इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? या 13 लाख माइनस 12 लाख की टैक्स रिबेट 1 लाख पर देना पड़ेगा? सही जवाब है कि उसे पूरे 13 के 13 पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मान लीजिए कोई शख्स 12 लाख 76 हजार रुपए कमाता है साल का, तो उसे पूरे 12 लाख 76 हजार पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ना कि मात्र 76 हजार रुपए जो उसने 12 लाख रुपए के ऊपर कमाए। ये टैक्स रिबेट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया था और मैं आज भी उस पर कायम हूं कि 12 लाख रुपए से यदि 1 रुपया भी आप फालतू कमाते हैं तो आपको अपनी पूरी इनकम पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। उसको मेरे उस बयान को लेकर वित्त मंत्री जी ने मुझ पर काफी व्यक्तिगत हमले भी किए, मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियां करी।
मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे